Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Guys, आज पहला हाँ homework 3 ना we are discussing. Sir, can you please discuss that question 61 from the exercise 1? I didn't get it till now. Oh, question 61 वाला. Okay. Yes, sir. एक मिनट. वो वाला ना मुझे क्या बोलते Can हैं? you speak a little louder? Vedant, which one? What are you saying? No, sir, I'm asking, can you please speak a little louder? Yeah. हाँ. नहीं actually he was लेकिन जय अभी एक मिनट पहले वाला वो भी था क्या होमवर्क में था क्या? हाँ सर, एक्सरसाइज 1 पूरा था. ओ एक्सरसाइज 1 पूरा था क्या? ओके ठीक है. तो उसमें क्या था होमवर्क? एवरीबॉडी हैज अटेम्प्टेड ना गाइस 4 वाले 3 4 5 Yes, sir. 61st वाला क्वेश्चन students हाँ या और you guys can take 2 minutes and attempt that question. Exercise 1 का 61st में जाए. Exercise 1 61st. Sir, in the solved example 7, I had a small doubt, sir. Okay. तो ये वाला था नहीं था क्या क्वेश्चन? It was not in the homework.
This one exercise 161. 61 was not in the homework, sir. Okay, okay. Yes, sir. I have a doubt in 51. जय इसको एंड में करेंगे चलेगा क्या? Because, sir, when you will do the sum, can you just put it on the group once someone? Okay, हाँ Because I हाँ. had doubt only in that sum. So Oh, ठीक है ठीक है ठीक है. Last somebody to put it on the group. हाँ. Sir, can you do 51? चलो ठीक है. अभी पहला जो है जो होमवर्क फ्लूइड्स होमवर्क 3 में था वो वाला डिस्कस करेंगे गाइस. हाँ. Sir, Yes, हाँ. sir, after you are done with fluids homework 3, will you take the other doubts of the like booklet, exercise 2, 3, 4? तो बाकी होमवर्क हम लोग क्या करते हैं एक साथ दे देंगे ना, फिर एक साथ सबके लिए हो जाएगा डिस्कशन. अदरवाइज बाकी लोगों ने किया नहीं है ना. Okay sir, मतलब okay sir, फिर इसमें मुझे डाउट नहीं है अभी तो फिर. वो आज की होमवर्क में कोई डाउट्स नहीं है. ओके ओके No sir, इसमें ज़्यादा problems नहीं थे. ओके ओके. Sir, exercise 151 करो ना. 51, question 51. एक्सरसाइज 1 में ठीक है. खुशी, व्हिच वाज योर डाउट? So my doubt was solved example 7, and I had in the exercise 138 also, only 2 sums. ओके, एक्सरसाइज 1 का 38 1 ठीक है. एक्सरसाइज गाइस एक्सरसाइज 1 में 38 में किसी को डाउट है क्या? प्लीज टेल. 38 के बाद और कोई डाउट स्टूडेंट्स प्लीज टेल. So someone had 51 also. 51 ना. Yes, sir. 51. एक्सरसाइज 1 में 38 51 ओके ठीक है. हाँ. Sir, 59. 59 चलो बेटा. हाँ, फर्स्ट 38 सर इवन 32 32 वाला कौशल. ये कौशल 32. हाँ 32 में जो है क्वेश्चन क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर ना. ठीक है भाई. सो यू हैव ये ऐसा you have two liquids. So Kaushal, you have to make a choice. कौन से मेथड से करना चाहते हैं? You know buoyant force, you don't know buoyant force. सर वी सर बाय buoyant force. Buoyant force. So buoyant force में जो है liquid A जो है A and B का density A is ऊपर वाला ना 0.7. इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.7. 32 homework में था. 32 वाला is not in the homework. No, sir, it was No, not in the sir. homework. It was not in the homework. Sir, actually I did not see which ones are in the homework, and I was solving booklet linearly, means by the line. So I don't think. But still, can you still solve it? Okay. Sir, it was in homework too. Oh. Yes, sir. 32nd was there in homework. I don't know which one, but it was there. अरे Yeah, I mean it was not in homework 3. Yeah. तो ठीक है क्वेश्चन जल्दी देखो. हाँ, अब डाउनवर्ड फोर्स विल बी mg. Yes, sir. mg is density of the solid area into height. Total height कितना होगा? h plus ha plus hb. ठीक है ना? Yes, sir. Upward force, buoyant force. Buoyant force is the weight of this displaced fluid. Yes, sir. HA plus HB. हाँ, एक दूसरा rho a into ha plus density of liquid B into A into HB into G. बस यहाँ पर we want to find H. बाकी सब तो नॉन क्वांटिटीज है. Partial understood? Yes, sir. Understood. I can take it further, sir. Okay. Thank you. हाँ 38 करते हैं. चलो 38 में I will suppose. हाँ ये ठीक है 38 हो गया. 38 38 में जो है इनिशियली ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है. सो 38 में ये लिक्विड पूरा भरा हुआ एंड दिस हाइट कुछ दिया नहीं है, h मान लेते हैं. दिस हाइट इज जो भी है साइड h. हाँ, और ये यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स जो है velocity of reflux will be how much? v naught is root 2 gh. ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला. हाँ, फिर जो है अब क्या किया इसमें? ओके, नाउ इट इज इसको आधा कर दिया.
ठीक है, तो इसको आधा कर दिया, लाइक लिक्विड इज नाउ दिस मच फील्ड। हाँ, ये तो उसका फ्रंट व्यू हो गया, इसको हाफ किया, फिर उसको रोटेट भी कर दिया। ओके, तो इसको यू हैव रोटेटेड बाय ये ऐसा। हाँ, तो ठीक है, तो ये ऐसा रोटेट किया, नाउ दिस इज लाइक दिस। हाँ, अब हाफ फील्ड कैसा दिखेगा, यहाँ तक भरा हुआ दिखेगा, यहाँ पर देयर इज अ ओपनिंग ओरिफिस, ये पूरा हाइट। हाँ, दिस वन वाज ईच एज वाज h, सो h जो है ठीक है। हाँ, ये वाला h है, दिस इज h h, सो ये पूरा विल बी हाउ मच, √2h, एंड उसका हाफ, दिस वन इज द हाफ, कितना हो जाएगा, √2h/2, which is h/√2. So height of the liquid above the orifice will be how much? Is your value. So √2h है ना, √2gh by h की जगह h/√2 रखेंगे। Okay, now this whole thing, this numerator will be √2gh, denominator क्या हो जाएगा, √2, हाँ, √2. Okay, this value is the initial value, which was V0. So this is V0 by √2 हो जाएगा, तो 2 to the power 1/4, 38 sound। Yes, sir, I got it now. हाँ, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 1 में Hello. और एक्सरसाइज 1 में और कौन सा था, डाउट नहीं? Sir, यस, हाँ, sir, can you please again explain? I was disconnected. ओके। देखो, ये समझ में आया कि इसमें जो है हाई टच लिक्विड, सो Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स विल बी √2gh। Yes. हाँ, तो ये उसको V0 को हमने बोल दिया √2gh। नाउ व्हाट दे हैव डन इज, इसको ना आधा फिल किया, आधा खाली कर दिया, आधा खाली करके नाउ इसको फिर क्या किया, 45 डिग्री से घुमा दिया। सो अगेन हाफ फिल तो ऐसे दिखेगा, अंडरस्टूड, दिस वन हाफ फिल, ये h है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, √2h। दिस वन अंडरस्टूड ना, ये √2h होगा डायगोनल। सर यस, हाँ, सर मैंने थोड़ा ऐसे स्लाइटली डिफरेंट मेथड से किया, तो बता सकते हो सही है या नहीं वो? नहीं, एक मिनट जाओ ना, उसको मैं बता रहा था, ये वाला करेक्ट किसका था, रुद्रा? दिस वन अंडरस्टूड, दिस वन है वेदांत। यस सर। वो कहाँ गया? हेलो, यस, हाँ, जैसे वो दूसरा मेथड मेरा वो सही रहेगा नहीं रहेगा, बता सकते? हाँ, वो स्टूडेंट चल, उसको कहाँ गया जिसने डाउट पूछा था, चला गया था, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। चलो ठीक है। हाँ, ये तो तुम्हें वेदांत दिस मेथड अंडरस्टूड ना? यस सर। हाँ, तुम्हारा मेथड क्या है बताओ? सर मैंने वो इंक्लाइन प्लेन के साथ कंपैरिजन लिया सर। अगर हमने उसको 45 डिग्री से रोटेट किया तो मैंने फिर नया एक्सिस बना दिया, एंड इंस्टेड ऑफ g I took it as g sin 45 as the acceleration, और फिर वैसे प्रोसीड किया मैंने। अरे नहीं, यहाँ पे तो कंटेनर को रोटेट कर रहे हैं, अर्थ को नहीं। तो सर कंटेनर को रोटेट कर रहे हैं भाई 45 डिग्री, तो सर तो मैंने फिर सर नया एक्सिस ही डिफाइन कर दिया ना, y एक्सिस को अलग हो गया, x एक्सिस भी डिफरेंट हो गया। अच्छा, तो फिर उससे हाँ, g sin 45 एक्सेलरेशन लेंगे, राइट? ओके, हाँ, तो जैसे सर हम जब इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स करते हैं ना, हम फिर वो इंक्लाइन प्लेन को एक x एक्सिस ले लेते हैं, फिर उसके अलोंग के एक्सेलरेशन को g sin थीटा लेते हैं, है ना, वैसा। हाँ, नहीं ठीक है, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा हो जाएगा ना यहाँ पर वेदांत। ओके ओके ओके। चलो, हाँ, नेक्स्ट भाई, ये आपका 38, नेक्स्ट डाउट किसका था? इट वाज 51 ना, 51 में what they have given is in a cylindrical vessel containing liquid of density rho, there are two holes, heights दिया h1 and h2, so the range of the flux at the bottom of is same,
the height of a hole for which range of the flux would be maximum. ठीक है, तो जो है भाई यहाँ पे इसमें क्या क्या गिवन है, ये वाला जो है this is a container और ये ऐसा range is same. Okay, H1 H2. Okay, ये वाला is H1. Okay, ठीक है, ये वाला H2 ले लेते हैं. So H1 H2 are the height is will be the range of the flux at the bottom is the height of the hole for which the range would be maximum. हाँ, तो अब पहले रिलेशन निकाल लेते हैं ना. तो क्या वेलोसिटी जो है इसके लिए वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इफ दिस टोटल हाइट इज h √2g v2. हाँ, √2g क्या आ जाएगा h minus h2. ये वाली वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v1 वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स √2g h minus h1. टाइम, इसके लिए टाइम कितना आ जाएगा t2 विल बी √2h2 by g. काइनेमेटिक्स है t1 is equal to √2h1 by g. और दोनों का प्रोडक्ट रेंज हो जाएगा एंड इक्वल गिवन है. सो आप क्या लिखोगे यहाँ पर x1 is equal to x2. तो क्या जाएगा रेंज, वही रेंज दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या g तो जाएगा यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ h2 into h minus h2 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा h1 into h minus h1. ये भी हटा लेते हैं. फिर क्या आएगा h2 h minus h2 स्क्वायर इज h1 h minus h1 स्क्वायर. इसको इस साइड ले जाएं क्या, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या जाएगा h2 minus h1. इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं और इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं. h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर. तो ये क्या जाएगा h2 plus h1 into h2 minus h1. ओके, और यहाँ पे आ गया h2 minus h1 into h. इसको हटा लेते हैं क्या, ये और ये हट गया. h is equal to h2 plus h1 आ रहा है हाइट. अब मैक्सिमम के लिए कहाँ पे होना चाहिए h by 2. h by 2. Therefore for R max के लिए height must be h by 2. So h1 plus h2 by 2. तो इसका आंसर क्या है, इसका डी है क्या आंसर? Yes, sir. ओके, फिर हाँ नेक्स्ट. यस हाँ, और सर 39 वाला सॉल्व कर सकते हो. 39 क्वेश्चन. 39. यस सर, हाँ ठीक है, 39 कर लेते हैं. ठीक है, ये वाला जल्दी, ये वाला कॉपी करो. ये वाला 51 तो आ गया था ना. शिवांश कौन सा डाउट है? सर वो थोड़ा के एक्सरसाइज में एक दो थे. ओके ओके ठीक है. पहले तो एक्सरसाइज 1 का कर रहे थे. हाँ, एक्सरसाइज 1 में एक, चलो वेदांत ये वाला हो गया. तो वेदांत तुम्हारा कौन सा 39 बोल रहे हो? यस सर 39. ठीक है, एक्सरसाइज 1 का 39. 39 में वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इन नॉन-यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ओके, तो प्रेशर दिया हुआ है, तो एरिया कम हो रहा है इसमें. यहाँ पे एरिया इज 0.02 और यहाँ पे एरिया इज 0.01. एरिया A1 A2. इसको V1 V2 बोल देते हैं. पहले तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पर. यस सर. तो देखो यहाँ पर जो है किसकी यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा आएगी. डबल एरिया आधा हो गया तो वेलोसिटी डबल हो जाएगा. अब यस सर. हमें वेलोसिटी कहाँ तक कुछ दिया है कि कहीं की वेलोसिटी यहाँ ये वाली V1 दी 2 है, मीटर पर सेकंड. ये वाला 2 दिया है. ठीक है, ये 2 दिया है तो V2 is 2 into 2 4 मीटर पर सेकंड आ गया. अभी तो पहला कंसेप्ट यूज हो गया A1 V1 equal to A2 V2 से, है ना. सेकंड कंसेप्ट बर्नौली.
बर्नौली का मतलब क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये इस लाइन के अलाउ एनर्जी कंजर्व कर रहा है, तो P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस, इसको रेफरेंस लाइन है। तो फिर H1 0 हो जाएगा ना, H1 और H2 पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा ये वाला। बस P1 समझ एक वैल्यू पता है ना हमें, कौन कहाँ की P1 का प्रेशर पता है, 4 into 10 So to 4 into 10 to the power 4. हाँ, और रो बाई 2 V1 स्क्वायर तो पता ही है तुम्हें। P2 तो मैं वो एरिया का टर्म देख के कंफ्यूज हो गया, मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ कि कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगाऊंगी, अभी समझ गया। हाँ, इसमें दो ही कंसेप्ट है, एक तो कंटिन्यूटी, दूसरा यस सर, quantity। यस सर। चलो ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1 में स्टूडेंट्स और कोई डाउट? So I had a doubt in the solved example 7th one. सॉल्व एग्जांपल 7, पेज नंबर कैन यू प्लीज टेल इसका? 1 second, sir. पेज नंबर, हाँ आई गॉट Sir, 28. 28। ओके हाँ, So my doubt in it was that in the accelerating frame, the buoyant force will not be equal to the buoyant force which is there in the stationary frame, right? करेक्ट हाँ। So then, but in this, G प्लस ए नहीं लिया है ना उन्होंने? I don't think they have taken that into account. sir. करेक्ट, नो बैंड फोर्स वुड बी G की जगह G प्लस ए हो जाएगा। यस करेक्ट कुछ, हाँ वो मिस्टेक है। So it is incorrect, right, in the text? हाँ Okay, sir. That's the only doubt I have. Thank you. ओके। यस स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट आउट प्लीज टेल। सर एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज 2 में Question क्वेश्चन 3. कर सकते हैं? एक्सरसाइज निदान विच वन, एक्सरसाइज 1 का 59 59 होता है। सर एक सेकंड सर, मैं वापस चेक कर लूं, आपने अभी 39 वाला सॉल्व किया? विच वन यू आर आस्किंग? नहीं सर, सिमिलर क्वेश्चन है वो, मेरे से सॉल्व हो जाएगा Okay. हो जाएगा सर। जी दिया, ये एक्सरसाइज 2 का कौन सा था, एक बार फिर से बताना। सर 9th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 का 9। ओके अलीना, यू हैव अ डाउट प्लीज, यू सेड समथिंग। Yes sir, I tried 59 but मुझे शायद गलत आंसर आ रहा है, आप इसके बाद एक बार कर देना प्लीज। ओके श्योर। एक्सरसाइज 2 का 9 सम, तो एक्सरसाइज 2 के 9 सम में जो है व्हाट दे हैव गिवन, गिवन है यहाँ पर एक ओके पाइप जो दिया है, और ओके ये ऐसा दूसरा पाइप, यहाँ पर ये ओपनिंग, हाँ फिर ये वाला जो है नैरोज डाउन, ओके ये ऐसा आता है ना। सो यहाँ से ये वाला x एंड y, सो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कहाँ की ज्यादा होगी, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो vy will be greater than vx, एरिया यहाँ का कम है, वेलोसिटी ज्यादा। अब जो है प्रेशर देखना है यार भाई, तो प्रेशर कैसे दिखाएंगे, यहाँ की वेलोसिटी जो है ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा प्रेशर वहां का, फिर प्रेशर यहाँ का प्रेशर पी वाई, वेलोसिटी लो, ओके ये प्रेशर पी है क्या, ओके पी, तो प्रेशर में वाई वाला कौन सा है, क्यू सेक्शन है, वाई वाला क्यू वाला है, इसको ऐसा कर लेते हैं। तो वाई वाला जो है ना, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ ये वाला पॉइंट, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट इज क्यू और ये वाला पॉइंट पी है ना, तो प्रेशर जो है क्यू का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना पी से। द मैनोमीटर पी शोस लोअर प्रेशर देन क्यू, ये फिर ये रॉन्ग हो गया ना जी? हाँ सर। तो मैनोमीटर एट पी शोस ग्रेटर देन प्रेशर देन वाई, वो वाला करेक्ट स्टेटमेंट होगा, है ना। और जो है क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी पर मीटर क्यूब ऑफ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पर मीटर क्यूब, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो बाई 2v स्क्वायर, राइट। और ये वाली वैल्यू किसकी ज्यादा है यहाँ पर,
यहाँ पर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका ज्यादा हो जाएगा। जी अंडरस्टूड सर हाँ सर समझा सर, थैंक यू सर। ओके ओके हाँ Sir? यस हाँ Sir, I had a doubt in a question from previous HA. Should I ask it now or later? प्रीवियस होमवर्क Yes, sir. It हाँ। wasn't discussed, that question. ओके ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ, ये इसके बाद कर लेते हैं। Okay, sir. Yes, Thank sir. you. Even I had one or two, so at end, can I ask? यस 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 श्योर 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 शिवांश हाँ। एक्सरसाइज 1 का अलीना प्लीज टेल व्हिच क्वेश्चन वाज दैट? 1 क्या 59 59 59 का क्या गिवन है इसमें? 59 में you are given a horizontal pipe carries line a streamline flow at a point on the plate. The cross section area is इतना velocity and pressure इतना the pressure of water at another point where cross section area is this है ना? Okay, तो 59 के लिए A1 B1 equal to A क्यूबिक लगाते हैं हाँ। तो पहला वाला एरिया कितना गिवन है? एरिया इज 10 टू पावर -2, एरिया इज 10 टू पावर -2, वेलोसिटी जो 2 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर जो है 0.5 × 10 टू पावर -2 V2, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो अब V2 की वैल्यू 4 आ गई, फिर जो है प्रेशर, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट्स अ हॉरिजॉन्टल पाइप, तो सिर्फ दो ही टर्म आएगी, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी वाला। P plus half rho 1 V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square कर दो भाई। 1 का प्रेशर कहाँ गया? 1 का प्रेशर इज क्या है? 8000 पास्कल्स। ये वाला 8000 गिवन है। 1 स्पीड 1000, स्पीड इसका 2 स्क्वायर। 2 का प्रेशर ढूंढना है, हाफ 1000 into 4 स्क्वायर। इससे कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? यस सर, मुझे प्रेशर नेगेटिव आ रहा है। नहीं सर, मुझे आंसर आया ऑप्शन सी। हाँ सर मुझे आया बराबर 2000 पास्कल। 8000 और वो कट जाएगा, वो हाफ रो V2 स्क्वायर और 8000 कट जाएंगे। ओके ओके हाँ 2000 बच जाएगा। 2000। अच्छा, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ओके 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 59 सर फिर एक्सरसाइज 3 में 8th क्वेश्चन भी डाउट है। ओके ओके एक्सरसाइज 1 का तो हो गया। एक्सरसाइज 1 का गाइस कैन यू मूव हेड? एक्सरसाइज 1 का अगर हो गया तो सर यस हाँ विधान। सर एक्सरसाइज 1 के आपने अपने फुल एक्सरसाइज 1 दिया था क्या होमवर्क के लिए? नहीं नहीं ना? नहीं फ्लूइड्स होमवर्क 3 में मार्क कराए थे ना। ओके ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फुल वाला नेक्स्ट कल देता हूँ, आज या कल देता हूँ पूरा। ओके सर, ओके 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 हाँ। अब जो है एक्सरसाइज 2 में गाइस, एक्सरसाइज 1 हो गया है होमवर्क हाँ, होमवर्क का रिमेनिंग वाले कर लेंगे। सर एक्सरसाइज 2 में 7th का C और D में मतलब एक्सरसाइज 2 कौन में, एक्सरसाइज 2 में हमने कौन सा 7th का सर यस हाँ। वंश हाँ ठीक, वंश क्लास ठीक चल रहा है, डोंट वरी हाँ। अरे नहीं अरे सर वो हाँ। भूल गया सर। सर आप एक्सरसाइज 2 नहीं पहुंचे हो ना? अभी तो एक्सरसाइज 1 हुआ है। हाँ तो ठीक। चलो हाँ, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का 7th वाला। The 7th wasn't in the homework. ओह 7th वाला होमवर्क नहीं था अनवय? No, sir, it was not there for the homework. ठीक है सर। सर मतलब मुझे लगा कि मॉड्यूल कंप्लीट करनी है तो मैं सारी कर रहा था। ओके ओके नहीं नेक्स्ट क्लास में मैं करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए हाँ, ये वाला पूरा आपको होमवर्क करूँगा। ओके सर। सर एक्सरसाइज 3 का 8th क्वेश्चन। भाई एक्सरसाइज 2 का दोबारा बताओ। एक्सरसाइज 2 में कौन सा था? सर 8A भी करवा सकते हो? कौन सा 8th वाला? 8th का A सर। एक्सरसाइज 2 का 8th का एक बार ठीक है। हाँ एक्सरसाइज 2 में क्या दिया है? इसमें जो है सिलिंड्रिकल वेसल हाइट h y मैक्सिमम, ओ इसका रेंज वाला। ओके रेंज का ऐसा आता है ना अभी जो, हाँ ये जो है ऐसा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो इसका हमने डिराइव किया था कि जो है दिस इज y डेप्थ पे होल है, तो उसका रेंज का फंक्शन क्या आ जाता है? रूट ऑफ y इंटू h माइनस वाई, राइट। और ये ग्राफ का प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आता है।
मतलब यहाँ वाले के लिए रेंज 0, बीच वाले के लिए रेंज मैक्सिमम, फिर ऐसा ये फंक्शंस है रेंज के। वंश ये वाला हमने जो किया था क्लास में वही ना? हाँ सर, क्लास में ये किया था, पर ये सर वो सेम है क्या? Okay, जाओ। If y is increased from 0 to h, h will decrease and then increase. 0 to नहीं, h will increase and then decrease होना चाहिए. x is maximum for h by 2. हाँ, तो a तो wrong हो गया, b वाला correct हो गया। सर आप सिर्फ ए पे ही समझा सकते हो क्या सर? वो बाकी सब पार्ट हो गया सर, सिर्फ ए ही नहीं हुआ ये वाला, अरे ये रेंज देखो ना, यहाँ पे रेंज हाँ सर ए। हाँ, ये रेंज मतलब y इक्वल टू 0 डालो, रेंज 0 आएगा नहीं? अब हाँ। y फिर y इक्वल टू h रखो, देन ऑल्सो रेंज इज 0। तो मतलब क्या हो रहा है, रेंज पहले इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, करेक्ट ना? यहाँ पे तो उल्टा दिया है, लोगों ने बोला पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। हाँ तो रॉन्ग अच्छा हो गया। राइट सर। हाँ नहीं, राइट रॉन्ग हो गया ना, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। वो शेप के हिसाब से आप बोल रहे हो ना सर, जो आपने बताया। हाँ, पहले रेंज इंक्रीज होगा, मैक्सिमम रेंज विल इंक्रीज ऑन टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट विल डिक्रीज ऑन। चलो ठीक है। हाँ, वंश अंडरस्टूड दिस वन? यस सर, समझ गया सर। ओके ओके, हाँ चलो ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 का और कोई नहीं है तो भाई एक्सरसाइज 3 पे आओ। हाँ, एक्सरसाइज 3 का समरी वाज सेइंग। सर क्वेश्चन 8। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या दिया है? स्टेटमेंट 1, when a container containing a liquid is accelerated horizontally, buoyant force is not vertical. Okay, देखना है भी, चलो buoyant force निकालते हैं। तो जो है सपोज ये जो है कंटेनर, हाँ, और इसमें जो है लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। ओके, तो अब इसमें जो है exercise 3, a question. So suppose you have ये ऐसा और एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बाइंड फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? इसमें बाइंड फोर्स कैलकुलेट करना है, and this is container which is accelerating with an acceleration a, ठीक है? तो इसमें let me ask somebody, वर्णिका कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये वाला? खुशी, how will you do this sum? Exercise 3.8.1. सर ब्लॉक पे mg नीचे लगेगा एंड देन सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉन्ड फोर्स एक एट एन एंगल लग जाएगा। ओके ओके, ठीक है भाई। देखो अन्वय, इसमें जो है हम दो तरीके से सोचते हैं। अब ये बताओ, जैसे ये कंटेनर एक्सलेट कर रहा है तो पानी तो मैंने रॉन्ग ड्रॉ कर दिया, पानी का शेप ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना? यस सर। अब उससे ये अब ये तो हमने पता चला गया कि जो है हमें क्या निकालना है, बायन फोर्स। बायन फोर्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं कि इंटीग्रल पीडीए ना, बायन फोर्स बोलते ही अपने माइंड में ये आता है इंटीग्रल पीडीए। अब देखो इंटीग्रल पीडीए हम निकालते हैं तो यू विल डेफिनेटली एग्री दैट कि इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर यहाँ पर, हाँ, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो अब यहाँ से जो फोर्स आएगा, से यहाँ का फोर्स P2 इंटू एरिया, ये वाला इस P1 इंटू एरिया, तो नेट y वाला तो ऊपर ही होगा, है ना? यू एग्री? लेकिन क्या होगा जब ये एक्सलेट कर रहा है, तो वी हैव आल्सो स्टडीड कि प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये वाला प्रेशर इधर ज्यादा हो जाएगा यस सर, एज कंपेयर टू दिस। तो नेट ये वाला जो पहले साइड वाले कैंसिल हो जाते थे, अब वो भी आ जाएंगे, तो नेट कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। यस सर। ओके,
वन वे, तो वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। सेकंड वे, भाई सेकंड वे क्या करते हैं, ऐसे ही वाला इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यही वाला बाउंड्री ड्रॉ कर लिया भाई, इस बाउंड्री के अंदर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा। अब ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पर इस लिक्विड के साथ साथ चल रहे हैं, तो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो फोर्सेस क्या क्या आ जाएगा, इस चंक That force produces acceleration. That's the reason, right? करेक्ट, हाँ, तो ये वही फोर्स, हाँ, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स इज द कॉस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, तो बाइंड फोर्स का y कंपोनेंट भी जरूरी है, बाइंड फोर्स का x कंपोनेंट, तो नेट फोर्स कहीं बीच में आएगा, नेट बाइंड फोर्स। शिवांश, अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. ओके सर हाँ सर ये मुझको भी ये सर डाउट था सर, वो सर FBX ये वाले साइड पे क्यों लगेगा, वो ऑपोजिट साइड पे लगेगा ना। अब देखो ये बताओ कि इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम सॉल्व किस फ्रेम में कर रहे हैं, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम में करना चाहते हो? सर कोई भी चलेगा, पर अभी सर नॉन इनर्शियल। चलो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं, तो इन चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम में करोगे तो रियल फोर्सेस तो दिखाओगे ही भाई, हाँ इसके अलावा सूडो फोर्स भी दिखाओगे। हाँ राइट, सूडो फोर्स पीछे की तरफ आएगा, और हाँ ये सर एक बाइंड फोर्स का y कंपोनेंट तो ये है, अब बाइंड हाँ। फोर्स का x कंपोनेंट, तो बाइंड फोर्स का x कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा। ओके सर, यस। दिस इज सूडो फोर्स। और सर अगर ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे तो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो सूडो फोर्स नहीं आएगा, हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल पे x डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर रहे हैं FPD, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, this bind force x component, this bind force x component is the cos of mass into acceleration। पर सर वो ग्राउंड फ्रेम में पता कैसे चलेगा कि वो, सर ये जो नॉन इनर्शियल वाले उसमें पता चल गया कि ऑपोजिट पे लगेगा वो उसके लिए, हाँ, तो सर इसमें कैसे आपको पता चल रहा है नहीं। FBX का डायरेक्शन? अभी नहीं, ये बताओ कि ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ साथ इधर जा रहे हैं x डायरेक्शन में, हाँ अगर इस x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स है। ओके, अच्छा राइट, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए बाइंड फोर्स का नेट वाला x वाला इधर ही है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। सर यस, हाँ सर एक पूछना था सर, आपने एक्सरसाइज 1 का 51st करवा लिया? एक्सरसाइज 1 का 51st हाँ कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले। सर मुझे एक्चुअली वो आ गया सर, मुझे ना सिर्फ एंड का समझ में नहीं आया था सर, वो उसमें h/2 आया कैसे सर, जो एकदम एंड में लास्ट स्टेप रहता है ना सर, वो सॉल्यूशन में वो समझ में नहीं आया था। 51 में ये वाला h/2 कैसे आया? हाँ सर, एकदम एंड में के जहाँ पे आते हैं ना वैसे। अरे बाबा देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया था, यहाँ तक कैपिटल H इज H1 + H2 उधर तक आ गया, हाँ ये आ गया था। अरे हमने वो भी तो किया था कि इस पानी, ये जो निकलता है पानी का, अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो होल कहाँ पे करना पड़ेगा, मिड पे तो करना पड़ेगा। हाँ तो मिड मतलब कितना हुआ इसका, आधा। अच्छा सर ने वो ग्राफ दिया था ना पैराबोला जैसा, अच्छा सर, जो अभी आपने मेरे को ग्राफ बताया था उससे ही होएगा क्या? हाँ वही तो है, ये वाला जो ग्राफ था। यस। और सर वो किसी ने सर वो ग्रुप में डिफरेंशिएशन का मेथड बोला था, तो सर वो किसके रिस्पेक्ट में करने का डिफरेंशिएट, कैपिटल H की स्मॉल h अगर करना है तो? अरे कैपिटल H तो कांस्टेंट है, y इज वेरिएबल, तो y का अच्छा राइट, वो h तो हाइट ऑफ कंटेनर, कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द कंटेनर, y इज वेरिएबल, है ना? गॉट इट सर, थैंक यू सर। हाँ चलो गाइस, तो आप करंट क्वेश्चन पे आ सकते हो एक बार। करंट कौन सा? वो अभी बॉयंसी वाले। ओ हाँ ये वाला बोल रहे हैं। हाँ ओरली पूछ लेता, कोई बात नहीं सर। उसमें बॉयंसी फोर्स अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगेगा ना? एक बार फिर से बताओ वेदांत। अभी बॉयंसी फोर्स ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगेगा ना? देखो बायंसी फोर्स मतलब लिक्विड का इंटीग्रल PdA नेट फोर्स। यस सर। तो y डायरेक्शन में वही बाइंड फोर्स mg को टैकल करेगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में वही बाइंड फोर्स मतलब लिक्विड का x
जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट विल टैकल द सूडो अच्छा। कोड। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सर। हाँ चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट हाँ भाई ये हो गया एक्सरसाइज कौन सा था? सर एक्सरसाइज 3 में आपने फर्स्ट होमवर्क में फर्स्ट सेकंड भी दिया था, तो वो एक बार बता सकते हो? एक्सरसाइज 1 में कौन सा? 3 में एक्सरसाइज 3 में ओके हाँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट सेकंड वो ये वाला जो हमने होल्ड किया था मर्करी बाहर आता है वो वाला। हाँ सर। वो ये वाला नहीं आया था? अरे ये तो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट वाले ये ऐसा था ना, ये आपका कंटेनर ठीक है। बैरोमीटर को आप कैसे फिल करते हो उल्टा करके, ये आपने इसको उठाया और कब तक उसको ऊपर रेज करना है टिल यू फाइंड अ कांस्टेंट हाइट। चलो ठीक है, यू फाउंड अ कांस्टेंट हाइट। यहाँ का प्रेशर इज 0 ये वैक्यूम है ठीक है, और यहाँ का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक is P0 which is rho mg 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? थोड़ा कम होगा ना, यहाँ 0 है, अब 0 से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ का प्रेशर से रो mg 40 सेंटीमीटर से। तो अब देखो यहाँ प्रेशर अंदर कम है, बाहर का प्रेशर क्या है? रो mg 76। तो ये लिक्विड बाहर कैसे आएगा भाई? अच्छा ओके सर। हाँ हाँ ठीक सर यस वंश हाँ सर आप क्लास कैसे वो आप सॉल्व एग्जांपल्स के डाउट्स ले सकते हो क्या बुकलेट के? हाँ हाँ पहले तो ये 3 वाला पूरा फॉर्मूला पूरा तो करने दो। अच्छा बाकी ओके रुक जाओ। हाँ गाइस एक्सरसाइज 3 में तो और कौन सा था बताओ? और हो गए थे क्या? तो वी कैन मूव ऑन टू एक्सरसाइज 4। Sir, यस हाँ sir, in exercise 3, can you discuss the third and fourth one? एक्सरसाइज 3 में थर्ड वाला। तो एक्सरसाइज 3 में थर्ड वाला देखो क्या दिया है? इन दिस एक्सपेरिमेंट वाटर इज यूज्ड। ओ भाई ये एक्सपेरिमेंट में हमने वाटर यूज किया था, तो याद है हमारा हाइट ऑफ वाटर कितना आया था? अब देखो सपोज मर्करी बैरोमीटर में 36 आया, वाटर का बैरोमीटर बनाओगे तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम ही होगा राइट। तो अब देखो तो उससे जो है अगर आप थर्ड मतलब वाटर का बैरोमीटर लोगे या मर्करी का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। मर्करी वाले में कितना आया था आंसर? रो एम जी हाइट ऑफ द मर्करी। यहाँ पे क्या जाएगा? रो डब्ल्यू जी हाइट ऑफ द वाटर, जी कैंसिल, हाइट ऑफ द वाटर, रो एम बाई रो डब्ल्यू इंटू एच एम बाई एच एम हाँ। और ये वाला वैल्यू कितना है? 13.6 डेंसिटी ऑफ मर्करी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। हाइट ऑफ द मर्करी कितना आया? 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 बाई 100 मीटर्स। ये अराउंड कुछ 10 पॉइंट समथिंग आता है ना। रुद्रा अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. So if experiment uses हाँ थर्ड वाला अंडरस्टूड ना दिस वन। हाँ फिर क्या है फोर्थ वाले में? If the mercury is used in a chamber and all the air in the form of the chamber is pulled out, oh atmospheric pressure ही हटा दिया। तो अगर यहाँ पे प्रेशर आपने बाहर का यहाँ का पूरा प्रेशर हटा दिया, तो हम बोल रहे थे हमने कैसे निकाला था? बोला था कि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इक्वल है ना। तो ये वाला पॉइंट को 3 कॉल कर लिया, इसको 2 कॉल कर लिया। प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2। अगर आपने एयर को पुल आउट कर लिया यहाँ से तो वैक्यूम हो गया, तो प्रेशर एट 3 भी 0। प्रेशर एट 3 0 मतलब इसके ऊपर जो मर्करी का प्रेशर कितना आता है? रो एम जी जो एच आता था 76। अब क्या हो जाएगा? ये पूरा जो है हाइट ऑफ द मर्करी अबव इट 0 हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन। Yes, sir, understood. हाँ चलो ठीक है। एक्सरसाइज 4 का गाइस, फिर एक्सरसाइज 4 में कौन सा था? सर एक्सरसाइज 4 नहीं दिया था ना? कोई होमवर्क नहीं था क्या? नो सर। ओके नहीं सर। ओके एक्सरसाइज 4 में और कोई नहीं होमवर्क था ठीक है भाई। और कुछ था कि एक्सरसाइज 5 में कुछ नहीं था ना? नो सर। नहीं सर No, 3 sir. तक ही था।
ओके ओके, फिर बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल्स हो गए डिस्कस? मुझे नहीं सर, डाउट है विंडोज सर डाउट था उसमें। विंडोज होमवर्क था क्या अभी? नहीं नहीं सर, था क्या होगा? नहीं ये होमवर्क 3 में नहीं था। अच्छा चलो ठीक है। अब हाँ, तो वंश तुम्हारा कौन सा सॉल्व एग्जांपल में डाउट है? और सर हाँ सर, वो 31st पेज पे 12th एग्जांपल है ना सर, उसमें। यस सर। 31st पेज में 31st पेज में 12th वाले में डाउट है। ओके हाँ सर। ओके। I had a doubt in the solved example as well. Question 7, page 28. ओहो हाँ, अभी स्टूडेंट ने पूछा था, शायद तुम्हारे में एक वही डाउट होगा कि बाय एंड फोर्स में ना G प्लस ए नहीं लिया है ना? हाँ जी, इफेक्टिव लेना चाहिए। यस वो वाला उसने एरर कर दिया है। एग्रीड। हाँ तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ, सिर्फ वही एरर है उसमें, बाकी And करेक्ट है। फिर सर उसके बाद हम अगर हम जी इफेक्टिव लेंगे तो हम MA अलग से कंसिडर करेंगे ना? ओके लेट मी सॉल्व इट। हाँ 1 मिनट। नहीं ठीक है, मैं सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, डाउट होगा तो आई नो लास्ट। नो, रिकॉर्डिंग में हमने पूरा सॉल्व नहीं किया था ना। रुको अभी। सर 7th वाला नहीं दिया था ना आपने तो? हाँ एक मिनट जाओ बच्चे। ऑलराइट। एक मिनट। चलो क्या है बुकलेट पेज 28, सॉल्व एग्जांपल 7। हाँ उसका भाई बी पार्ट ना यार, बी पार्ट। यस सर, आप कोई भी एक पार्ट के इक्वेशंस लिख दीजिए बस। चलो बी पार्ट का भाई, बी पार्ट में जो है यू हैव अ फ्लूइड बकेट, और ये फ्लूइड है एंड ये ऊपर जा रहा है ना, एंड दिस इज द स्ट्रिंग हियर। ठीक है भाई, अब ये ऊपर जा रहा है तो पहले हम विद एक्सेलरेशन सम ए नॉट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल देते हैं। चलो नॉन इनर्शियल फ्रेम, वी वांट टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहले रियल फोर्सेस दिखाते हैं। टी दिखा दो भाई, mg दिखा दो, बाय एंड फोर्स दिखा दो, और रियल फोर्सेस हो गए। अब सूडो फोर्स भी दिखा दो भाई, सूडो फोर्स FPS m into a नॉट। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये न्यूटन लॉ लगा रहा है, तो ये क्या बोलेगा भाई, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स कह देगा। तो ठीक है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इज द बाइंड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या क्या है, mg और सूडो फोर्स को क्लब कर लेते हैं। चलो पहले लिखते हैं फिर क्लब करेंगे। FPS सूडो फोर्स प्लस T FB सूडो फोर्स इज m into a नॉट। तो यस वाला लिखते हैं, सूडो फोर्स इज m into a नॉट। So we are clubbing this, so m times g plus a naught plus t। ये आ गया यहाँ तक। अब जो है बाय एंड फोर्स निकालना है। बाय एंड फोर्स निकालने के लिए यहाँ तक तो हो गया। बाय एंड फोर्स अगर निकाल लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर, चंक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो बाय एंड फोर्स के लिए भाई इस ऑब्जेक्ट को भूल जाओ। ये कंटेनर बनाया बड़ा सा, लिक्विड दिखाया, अब ये बॉडी, और ऐसे ही जो है वही शेप का चंक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यू डोंट नीड अ स्ट्रिंग सपोर्ट। ओके, स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं चाहिए। तो दिस मॉलिक्यूल्स अब इससे सॉल्व, यही बंदा सॉल्व करेगा यार। तो ये बंदा क्या बोलेगा, ठीक है इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हमने बनाएंगे भाई, ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू जी। फिर बोलेंगे अब सराउंडिंग लिक्विड का फोर्स, उसको बाय एंड फोर्स में कैटेगराइज करेंगे। रियल फोर्सेस, सूडो फोर्स भी दिखाओ, ये बंदा नॉन एक्सीलरेटिंग है, तो जो है इस बंदे के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स मास ऑफ द लिक्विड चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ए नॉट। तो बाय एंड फोर्स निकालने के लिए यू विल से दैट दिस मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम इन दिस कंटेनर। ठीक है, तो बाय एंड फोर्स क्या हो जाएगा, ml टाइम्स g प्लस ए नॉट। बाय एंड फोर्स यहाँ से कैलकुलेट हो गया चंक ऑफ मॉलिक्यूल से, तो जो इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स को लगेगा वही इसको लगेगा। अब इधर आते हैं भाई, यहाँ पर यस सब्स्टिट्यूट करना है बस। g प्लस ए नॉट इज इक्वल टू
and mass of the solid mass of the solid G plus A naught plus T. तो T निकालनी है भाई, T निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ द लिक्विड कॉमन माइनस मास ऑफ द सॉलिड G plus A naught कॉमन. ये ठीक है ना? यस सर, गॉट इट, ये Okay. कंफर्म. थैंक यू सर. हाँ हाँ. अब जो है पेज नंबर कौन सा था यार, ये वंश कौन सा डाउट पूछ रहे थे? सर वो 31st पेज पे 12th एग्जांपल. पेज 31 एग्जांपल 12. हाँ, इसमें क्या कहता है, इसमें you have a layer of non-process immiscible liquids, density rho, 4 rho, height h by 2, each of height h by 2. ठीक है, so इसमें ये liquids और each of height is h by 2, h by 2, h by 2, और इसकी density rho and 4 rho. Okay, 4 rho. Determine the position where a small hole is punched. The heavier liquid comes out with a maximum range R1. यहाँ पर ना, ओके, तो यहाँ से ये है मैक्सिमम. इन लोगों ने क्या बोला, हाइट कहाँ से लिया है, चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई सा भी ले लो. चलो यहाँ से सॉल्व किया हमने. हाँ, ये वाला जो है इसको क्या बोला है इन लोगों ने, H बोला. चलो भाई H बोल दिया. यहाँ से पहले यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से टाइम. हाँ, टाइम कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g, इसको y बोल देते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2y by g. स्पीड निकालना है, ये वाला स्पीड. ये स्पीड निकालने के लिए ओके, ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, इसको कॉल करते हैं 1, इसको भी 2. 1 and 2 के बीच में पहला लगेगा कंटिन्यूटी. क्या आएगा कंटिन्यूटी का, a सर 2 एक बार बता सकते हो किधर है? और 2 ये वाला होल. ओके ओके. और फिर से जस्ट बाहर निकलने के बाद a into v2. तो v1 की वैल्यू क्या जाएगी, a by a into v2. वंश यहाँ तक ठीक है ना? हाँ सर. तो v1 का स्क्वायर, देखो v1 छोटा है, v1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 अटेंड करेगा. v2 का स्क्वायर, v1 देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा आ गया, a by a होल छोटा है, ये ऐसे ही छोटा हो गया v1. उसका और स्क्वायर करोगे तो ये छोटा हो गया. हाँ, नेग्लिजिबल में डाल दें, है ना? अब जो है यहाँ तक तो आ गया. अब इसकी ये निकाल लो. अब बर्नौलिस क्या आएगा, P प्लस इसकी डेंसिटी क्या है, हाफ 4 रो v1 स्क्वायर प्लस 4 रो g h1 p2 प्लस, है ना, 4 रो by 2 v2 स्क्वायर प्लस 4 रो g h2. वंश यहाँ तक अंडरस्टूड? हाँ सर. और सर इसमें फर्स्ट पॉइंट पे वो दोनों के इंटरफेस पे तो आपने कैसे डिसाइड किया किसका लेने का है, वो थोड़ा बता दें. सेम डेंसिटी वाले लेने हैं ना, इधर की डेंसिटी 4 रो है तो यहाँ भी 4 रो वाली लेनी पड़ेगी. ओके सर. अच्छा, वो बर्नौली का डेरिवेशन किया था वैसे. अब जो है, अब हमने बोला कि भाई v1 ऐसे ही छोटा है तो v1 स्क्वायर तो ऐसे ही चला गया, v1 स्क्वायर, है ना वंश? यस सर. चलो ठीक है भाई. अब रेफरेंस लाइन बताओ कौन सी लेनी है, 1 सर रेफरेंस लाइन v2 वाले को ले लो जो, हाँ उधर. चलो रेफरेंस लाइन v2 वाले को ले लो. ये तो गया यहाँ पे, ठीक है. यस सर. बाहर निकलने के बाद p2 का प्रेशर क्या होगा, p नॉट हो गया. ये हो गया 2 रो v2 स्क्वायर, है ना. अब यहाँ ये हो गया 1 का हाइट कितना होगा ये बताओ, h by 2. अरे यहाँ से हाइट है, रेफरेंस लाइन से हाइट, पोटेंशियल h by 4 होगा. h by 2 minus 1. अच्छा हाँ सॉरी, h by 2 minus y. चलो ये आ गया, है ना. अब P1 होता है यहाँ का प्रेशर, यहाँ से नीचे आओ, यहाँ का प्रेशर कितना है, P0. तो P0 प्लस कितना आ जाएगा, रो जी
h/2 यस सर। अब ये उड़ा दो, P0 हट गया। अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब रो भी हटा सकते हैं ना यार, ये वाला रो हटा लो। हटा दो। चलो ठीक है भाई। यहाँ अब रो हटाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना बच रहा है, GH/2 बच रहा है, और ये वाला इधर GH/2 बचा। और क्या बचा यहाँ पर, अरे यार 4GH/2, 4 भी है ना, और ये क्या जाएगा -4y/2 इज 2v2 ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितनी आती है वेलोसिटी, इसको भी नीचे ले आएंगे यार, ये वाला काम, तो इसको भी नीचे ले आते हो। चलो इसको भी नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 5GH माइनस ये कितना है 4y 5GH-4y बन रहा है। सब कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं है, देखते जाओ भाई। हाँ, 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड सर बाय आपको 5, अरे यार जी भी आएगा ना सर, हाँ, इज 2v2 तो सर ओनली v2 हाँ इज v2 ठीक है भाई। तो v2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगी क्या? सर कुछ रॉन्ग कर दिया कहीं पर, देखो तो सही। हाँ ये सर प्रेशर आपको शायद से 5h माइनस 8h आना चाहिए था, मतलब y आपको 5h माइनस 8y आना चाहिए था सर शायद से। कुछ रॉन्ग है क्या, कहाँ पे मिस्टेक किया? ये तो ठीक है, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी हटा दिया, इसको लिया यहाँ पर P0, ये 2 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके रेफरेंस में, इसकी हाइट h/2 माइनस y लिखा, प्रेशर की जगह यहाँ का प्रेशर P0 प्लस रो, ये डेंसिटी की डेंसिटी रो है, रो जी h/2, P0 हटा दिया, तो ये कितना आ गया GH/2, 4GH/2। अब ये 2 क्यों डाला है ये वाला, ओ ये 2 सिर्फ 4GY होना चाहिए ना, 4GY है ना गाइस, यहाँ मिस्टेक है ना 4GY, तो 4GY आना चाहिए था, 4GY लिखा है, इसको 8 कर देते हैं। चलो अब ठीक है ना वंश? हाँ सर अभी सही है। चलो ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा रेंज, इसको मैक्सिमाइज कर दो। वंश अंडरस्टूड दिस वन? यस सर। ये आ गया ना तुम्हारा, वेलोसिटी आ गई ये वाली, क्या जाएगा इस रूट से बाहर 5GH माइनस 8GY/2, और इनटू टाइम करेंगे तो ये आगे रेंज जाएगा। टाइम की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। बस इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना? ओके सर, अभी इसको मैक्सिमाइज करके 0 से हो जाएगा। हाँ मैक्सिमाइज करना। सर वो सर एक कंफ्यूजन था। हाँ। सर ये लोग जब भी वो पूरा हाइट ऑफ कंटेनर रहता है फिक्स्ड, तो सर वो लोग मतलब कभी ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड नहीं भरा हुआ रहता है, तो भी हमको फिर उसमें इनिशियली हाइट ऑफ लिक्विड और कंटेनर को वही सेम h लेना होता है ना? लिक्विड भरा रहता है मतलब समझा? मतलब सर वो भरा रहता है, लेकिन सर एकदम थोड़ा सा मतलब ऊपर से नहीं भरा रहता है, और वो लोग बोलते हैं कि कंटेनर ऑफ लिक्विड इज, अरे कंटेनर इज h करके। तो मतलब ये पूरा भरा नहीं है ऐसा, यहाँ तक है? हाँ सर वैसे भरा है। हाँ और सर वो, हाँ और अभी जो कंटेनर का हाइट है ऊपर h है सर, जो थोड़ा सा ऊपर है मतलब वैसे। हाँ तो भी लिक्विड का पूरा h ही गिनेंगे ना? पूरा h लिखा। हाँ 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 सर ओके। चलो ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताओ गाइस। सर वो सर सॉल्व एग्जांपल का आप करवा सकते हो क्या? वो थोड़ा डाउट मुझे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मतलब वो दिया नहीं था लेकिन पूछ सकता हूँ फिर भी। एक मिनट जाओ, वेदांत वाले हो जाने ना।
ये मतलब सर वो पिछले के कॉन्सेप्ट्स का ही है लगता है, आपने लगता मिस आउट कर दिया कहीं। कौन सा? द विंडो टू आईआईटी जेईई का फर्स्ट का ए का सेकंड पार्ट। विंडो टू आईआईटी जेईई का फर्स्ट का जब आप होमवर्क में देंगे तभी कर सकते हैं। नहीं दिया था क्या? ये मिस आपने हो गया, करवाया नहीं दिया? करवाया नहीं है तो शायद तो सर होमवर्क में देंगे ना 4 में देंगे क्या? ठीक है ठीक है। हाँ इसमें मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया है क्या? मतलब यू मीन टू से क्वेश्चन मिस कर दिया है कि क्या मिस किया है यहाँ पर? सर वो बोल रहा है कि आपने शायद बाय मिस्टेक पढ़ाना भूल गए हो वो चीज ऐसे। नहीं पढ़ाना नहीं सर, आपको लगता दिया ही नहीं वो विंडो वो टू कह रहा है आईआईटी कि जेईई सेम का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हो गए लेकिन आपने दिया नहीं है वैसे। ओके दिया था क्या सर ने विंडो टू आईआईटी जेईई का फर्स्ट का नहीं ए दिया पार्ट? था। नहीं दिया नहीं था। भाई ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट में ले लूंगा ना, अभी टाइम तो है। हाँ ओके सर। चलो। ये सर बस इतना बोल सकते हो कि अगर हमने सपोज तो एक कुछ अपन ने अगर लिक्विड में कुछ ऐसे रॉड या कुछ डाला तो उसके कारण प्रेशर एट बॉटम चेंज होएगा क्या? लिक्विड में रॉड को इमर्स कर दिया है। हाँ, रॉड के कारण कुछ मतलब प्रेशर चेंज होगा क्या बॉटम में? नहीं, प्रेशर का वेरिएशन के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है P इज इक्वल तो रो टू P प्लस रो GH होगा क्या? हाँ चीजें कर लो। अच्छा एक बार सर आप सॉल्व एक बार मैं वापस रीअटेम्प्ट करके देखता हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे कराता हूँ। यस सर यस। सर यस हाँ सर आप पेज 27 का 6th सर एक बार बता सकते हो क्या? मतलब मैंने सर हमारे मेथड से क्या तो मेरे को आंसर नहीं आ रहा था, मतलब अंडर रूट PT माइनस P0 बाई रो आ रहा था, तो आप वो एक बार बता सकते हो क्या सर? 27 पेज नंबर 27 में कौन सा? सर 6th वाला 27 का 6 वाला, ओके ठीक है पेज। एक्सक्यूज मी सर। यस हाँ सर आज आपने वो क्लास इलस्ट्रेशंस नहीं करवाया ना? आज क्लास इलस्ट्रेशंस, हाँ नहीं वो यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास इलस्ट्रेशन 3 क्या? नहीं हाँ अरे नहीं खुश, आज वो क्लास इलस्ट्रेशन 3 एक साथ करते ना, वो बहुत टफ है। आई ओके मीन ओके सर। हैव यू ट्राइड दिस वंस? मतलब मैंने होमवर्क 3 में मुझे डाउट्स नहीं थे इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया था, बट फिर मैं खाली एक बार ऐसा देखने आया था कि आप वो सॉल्व तो नहीं कर रहे हो ना। ओके खुश, आज नहीं मैं इसको क्लास में करा दूंगा ना, क्योंकि वो टफ सम से लोड हो गया। ओके सर। हाँ तो मैं चाह रहा था कि पहले बच्चे पूरा एक्सरसाइज 1 वो सब कर लें, अदरवाइज वो वाला देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट ना हो जाए इसलिए ना। ओके सर। सर Hello? एक छोटा सा डाउट था एक्सरसाइज 3 का सेकंड क्वेश्चन में कि उसमें जब ऊपर एक होल बनाया है तो साइड मतलब मैक्सिमम मतलब जो प्रेशर होगा लिक्विड के अपर सरफेस पे तो वो P0 होगा। सो लाइक फिर बाहर कैसे जाएगा फ्लूइड? बिकॉज अंदर भी P0 है एंड देन बाहर भी P0 है। ओके यू मीन टू से दैट कि यहाँ पर जो है ओके ये जो है ऐसा अगर आ गया एक्सरसाइज 3 का सेकंड है ना। हाँ यस और तो ये ऐसा है, ये लिक्विड भरा हुआ और ये ऐसा, हाँ तो यहाँ पर आपने लिक्विड भरा एंड देन टॉप पे खोल के और ये 76 सेंटीमीटर का मर्करी यहाँ खड़ा हुआ है, राइट? यस सर। जैसे यहाँ पे होल किया तो ये एयर आ जाएगा और आपने यहाँ पर 76 है ना, 76 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये 76 सेंटीमीटर यहाँ पे इस बेसिस पे अपन बोल रहे थे कि यहाँ का प्रेशर इक्वल। अब देखो यहाँ से जब एयर आएगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो हाइट डिक्रीज होगी। यस तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो फिर पानी वो होल से कैसे निकलेगा जो साइड में होगा? नहीं यहाँ मर्करी है ना, तो ये ओपन है ना यहाँ पर। ओ यू मीन टू से कि जो है नहीं एक्सरसाइज जो क्वेश्चन में क्या दिया है पानी का? आउट ऑफ द ट्यूब ही लिखा है, आउट ऑफ द होल नहीं लिखा है। ओके ओके ट्यूब, हाँ ट्यूब से ना। तो ट्यूब से मतलब नीचे आएगा ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब जो मर्क्यूरी का लेवल है कंटेनर में वो बढ़ेगा, वो क्वेश्चन है। माउथ से नीचे आ जाएगा ऐसे। हाँ ओके ठीक है सर फिर। हाँ ओके सर। Sir? यस हाँ Sir, will you take HCV doubts today or some other lecture? एचसीवी के आज जो मैंने वो वाले दिए थे ना, क्या नाम है, जो होमवर्क 3 के थे। Yes. चलो ठीक है करते हैं। अरे वंश कौन सा है तुम्हारा? सर पेज 27 का 6th एग्जाम्पल। पेज 27 का 6th।
पेज 27 6 एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल। हाँ, तो इसमें यू आर सेइंग कि जो है क्या क्या गिवन है, स्मॉल टैंक हैज अ स्मॉल होल एट हाइट y1, ये टैंक और ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ, और ये होल जो है y1 इज फ्रॉम द बॉटम, ये वाला y2 है, ये वाला y2 is filled with y2 टोटल है ना, हाँ y2 टोटल है। तो ये हो गया y2 minus y1 हो जाएगा। The pressure at the top of the liquid is P1, यहाँ पे P1 है। Find the velocity which leaves the tank assuming that यहाँ तो पहला जो है इस पॉइंट को 2 मार्क करोगे, ये वाला पॉइंट 1 मार्क करोगे, ये वाला टॉप वाला, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे a into v1 is equal to small a into v2, कंटिन्यूटी का पहले लगाओगे, कंटिन्यूटी और बर्नौली। अब ये v1 ऐसे ही छोटा आ गया, यहाँ का वेलोसिटी एरिया बड़ा है, तो v1 का स्क्वायर टेंड्स टू 0 बोल दोगे। फिर सेकंड कंसेप्ट क्या आएगा, p प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 इज इक्वल टू p2 प्लस रो बाई 2 v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। अब देखो यहाँ पर ये 0.2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर आ गया, एटमॉस्फेरिक P0, ठीक है। अब जो है ये बताओ कि रेफरेंस लाइन किसको लेंगे, 2 को सर लेंगे, 2 को ले लो। हाँ इसको रेफरेंस लाइन लेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही ले गया, ये वाला हाइट, ये वाली हाइट हो जाएगी रो जी, ये क्या है y2 माइनस y1, ओके y2 माइनस y1, P1 का प्रेशर P1 ही है, और ये तो ये छोटा गया सर G। P1 का प्रेशर क्या लोगे सर? अरे P1 का प्रेशर उन्होंने दिया है ना, क्या दिया है यहाँ पर, द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द फ्लूइड इज P1। ओके ओके सर। अब ये हो गया रो बाई 2 v2 स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, P1 माइनस P0 प्लस रो जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू रो बाई 2 v2 स्क्वायर। सर हमें हाँ हाँ बताओ बताओ। नहीं सर सॉरी कुछ नहीं सर, वो लोग ने v1 v2 का वैसे लिया ना, तो मेरे को लगा हमने गलत लिया। ये आएगा ना इसका आंसर अभी। हाँ ओके सर। सर एक मिनट। ओके गाइस, नेक्स्ट कौन सा डाउट है? हाँ सर कैन यू प्लीज डू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3? एक्सरसाइज 2 का, Yes, sir. ओके ओके, हाँ एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। इज दैट मंथन? मंथन था क्या वो, कौन था? व्हाट वाज योर नेम? प्रथम। हाँ फिर से अगेन। प्रथम। प्रथम प्रथम, चलो ठीक है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, द वेट ऑफ द एम्प्टी बैलून इन स्प्रिंग बैलेंस इज W1। ये स्प्रिंग बैलेंस और ये बैलून, हाँ बैलून ऐसा, ये बैलून, हाँ ये बैलून है और इसका वेट यहाँ पर W1 आ रहा है, मतलब बेसिकली क्या गया, mg इज इक्वल टू W1। हाँ अब क्या दिया है, the weight becomes W2 when the balloon is filled with air। ओके ये सा स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, अब इसको आपने एयर से फिल अप कर दिया। अब जो है हमारा सिस्टम कौन है, तो माय सिस्टम इज, जिसको हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, द रबर ऑफ द बैलून, rubber of the balloon plus air inside is my system। तो ठीक है भाई, डाउनवर्ड, अब इसमें when, अब इसका रीडिंग हो गया W2 हो गया। अब क्या क्या आ जाएगा, mg नीचे, और भाई मास ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स भी नीचे आएगा, मास ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इनटू g, और क्या आएगा, बाय सराउंडिंग एयर का फोर्स, सराउंडिंग फ्लूइड का फोर्स, बाय फोर्स आ जाएगा। इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, तो यू राइट क्या आएगा, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट करते हैं। चलो
okay, W2 plus FB is equal to mg plus mass of the air into g, mass of the air. Band force कितना हो जाएगा? Okay, band force Hello? mass of the air into g. ओहो, तो ये और ये क्या? So W2 is mg और W2 was यहाँ पर W1 was equal to mg. Okay, okay. So W2 equal to W1 आ गया. यार आंसर क्या है इसका? Sir, A and C option. Okay, okay, okay. So understood ना? Yes, sir. सर Yes, हाँ. और सर ये 6th वाले का आंसर आ गया सर लेकिन वो नीचे नीचे वो लोग ने क्या लिखा है सर, वो मैं वो आंसर समझ रहा था सर, वो सब जो है 6 वाला कौन सा भाई? हाँ सर वही 6th वाले का आंसर आ गया सर लेकिन वो जो नीचे √2gh और फिर वो √pt - p0/ρ सर वो सब करना क्या जरूरी है क्या? वो सॉल्व एग्जांपल ही होता है. नहीं वो लोगों ने केस लिया है. अगर मान लो उसको ओपन ये तो जनरल केस हो गया ना. अगर मान लो टैंक ओपन कर दिया तो बाहर का P1 क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा. हाँ तो P1 P0 हो गया तो फिर क्या बचा क्या? √2gh. अच्छा वो करना जरूरी नहीं है वो सब में मतलब एग्जाम नहीं करना जरूरी था. उन लोगों ने बस उसको एक्स्ट्रा करके दिखाया. और सर और एक डाउट था सर. हाँ सर आप सर 26 पेज के 5th एग्जांपल में सर मेरे को नेगेटिव आंसर आ रहा था सर रूट में, वो लोग का आंसर गलत है क्या सर? 26 पेज के 5th नहीं ये तो करेक्ट है. सर पता नहीं मुझको नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा था, वो एक बार बता सकते हो? 26 पेज में प्रथम इसका आंसर कुछ रॉन्ग है क्या कौशल? Yes, sir. उसका रॉन्ग है कि कुछ आंसर पेज 26 का सॉल्व एग्जांपल पेज 26 सॉल्व एग्जांपल 5. इस टाइप का मैंने इलस्ट्रेशन में भी रखा है. हमने इसको ना एक क्लास लेसन 3 में भी रखा है मैंने वंश. हाँ सर यही वाला सम मैंने क्लास लेसन 3 में भी रखा है. देखो you have the class illustrations. उसका कुछ है क्या? you have class illustration? सर फोन में एक मिनट. क्लास illustration 3 वाला जो है ना वो वाला क्वेश्चन मैंने उसमें रखा है. रीडो का ही सामने है इसलिए. देखो ये Yes, sir, it is there. इसको मैं देखो वो है. देखो उसका डायग्राम है पेज या पेज 1 में ही है क्वेश्चन दिखा है मुझे. 1.8 इसका डायग्राम है भाई. सर 1 पे किधर? 1.82 इसका क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ है ना इसका Question 3. हाँ ये पिटॉट ट्यूब है ना वाला. सर पेज क्या बता सकते? Yes, sir. पहला पेज में है ना. पिटॉट ट्यूब इज माउंटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ गैस पाइपलाइन. देखो हाँ सर मिला सर, वो सर जिसमें वो एल जैसे शेप है वो. नहीं एक फिगर 1.82 है ना. देखो ना. हाँ मिला. ओके सर. तो ये वाला क्वेश्चन ये क्लास में कराता हूँ चलेगा? सबके लिए हो जाएगा फिर? ठीक है सर नो प्रॉब्लम. हाँ पर सर आप बाद में इस आंसर को जरा देख सकते हो क्या, क्योंकि मेरे को गलत लग रहा था सर, और अगर वो लोग का सही भी है तो वो रूट में आना चाहिए ना आंसर को. ठीक है हाँ रूट में आना चाहिए. हाँ. और सर वैसे भी वो गलत लग रहा था सर. आप मैंने 1-2 जन से पूछा भी था सर, वो लोग ने बोला कि सर से पूछते करके, तो आप जरा फिर आप सर मुझे बोल सकते हो बाद में कि सही है कि गलत है. यस ये वाला करेंगे ना अपन, सॉल्व करेंगे ना. ओके सर थैंक यू. Sir, illustration 5 क्या? नहीं 3 अभी 5 कहाँ दिया है? 3 वाला. अभी 4 भी नहीं मिला अभी तक.
नहीं वंश कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो? अरे मैं सॉल्व एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्लास इलस्ट्रेशन 3 में सर करवाएंगे। ओके चलो ठीक है। हाँ यस शिवान, यस तो ये बुकलेट हो गया। शिवांश यू आर सेइंग समथिंग, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सर वो एक्चुअली मुझे एक्सरसाइज 4 में एक थोड़ा जो आपने ऑलरेडी किया था उसमें डाउट था, तो फिर वो जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे ना तब मैं फिर पूछ लूंगा, आप अभी एचसीवी ले लो। ओके एचसीवी का ठीक है भाई, एचसीवी बताओ यार जल्दी। सर 21 यस यस हाँ सर आपने सॉल्व एग्जांपल 5 किया है? 5 जो वंश अभी वही वाला 5 वाला पूछा था क्या? हाँ सर वही पूछा। हाँ ना वो वाला ना, हमारे जो मैंने क्लास इलस्ट्रेशन दिया है एक, हाँ उसमें क्लास इलस्ट्रेशन 3 में थर्ड क्वेश्चन है वाला। तो इज इट ओके इफ आई डिस्कस इन द क्लास वाला, सब क्लियर हो जाएगा? ओके सर। और ठीक है हाँ, अभी एचसीवी का कर लेते हैं, थोड़ा टाइम शॉर्ट है। हाँ चलो एचसीवी में बताओ भाई कौन सा है? सर 31C। एचसीवी का 31 क्वेश्चन 21 एक मिनट। Sir, in 28, can you tell how will we find the velocity? किसमें 28 इसका पेज नंबर कहाँ से? बुक में पेज नंबर कौन सा है? 275 270 ओके हाँ। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 28 यू आर सेइंग ना? 28 ओके। लेट्स सी द एक्सरसाइज। लेट्स सी द एक्सरसाइज का 28। तो 28 में जो है, अरे हाँ ये वाला वही हो गया, बर्नौलीज एंड कंटिन्यूटी से कर सकते हैं। तो ये ऐसा अब ये वाला उन लोगों ने ए बोल दिया है, तो ये इसको वी ए एंड वी बी। तो पहला कंटिन्यूटी से क्या आ जाएगा? एरिया एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एरिया एट बी इंटू वेलोसिटी एट बी। ए का एरिया कहाँ गया? ए का एरिया इज 4। ओह 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना? हाँ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी दिया। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो होता है ए इंटू वी, और रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए दिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। 4 मिलीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर ना, तो ये 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया? ये वाला -3 क्या ये वाला इंटू ये ए के लिए लिख रहे हैं अपन, ए वी ए। तो ये क्या होगा? 1000 बाई 4 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके 10 raised to -2 1000 बाई 4 ना? sir, instead of 10 raised to -3 it should be 10 raised to -2 10 टू पावर -2 होगा क्या ये वाला? ये नहीं ये हाँ सॉरी हाँ करेक्ट। सो एरिया इज 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 100 बाई 4 250 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब बी का एरिया देखो, बी का एरिया क्या है? डबल है, आधा है, सॉरी बी का एरिया आधा है, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद जो है प्रेशर डिफरेंस बताना है बस। अब पी ए प्लस रो बाई 2 बी ए स्क्वायर। दूसरा ये आ जाएगा देखो। Yes sir, yes sir. आप क्या करोगे? पी ए माइनस पी बी करोगे। तो आप पी ए माइनस पी बी कैसे निकालोगे? रो बाई 2 कॉमन, बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। बी बी की वैल्यू पता है 1/2, बी ए की वैल्यू पता है 1/4। अंडरस्टूड दिस वन? चलो ठीक है। Yes sir. ओके 28 के बाद सर हाँ सर जो 31st का बी पार्ट था हाँ। सर उसमें मेरे को एक कंफ्यूजन हो रहा था सर, रेफरेंस लाइन कैसे लूँ? मतलब वो ए और बी का लेवल अलग है, तो वो रेफरेंस लाइन दोनों पॉइंट से पास नहीं करेगी ना? जैसे हमारा 28 में कर रहा है रेफरेंस लाइन दोनों पॉइंट से पास, वैसे 31st में नहीं होएगा?
अरे 31st में बी को ले लो ना रेफरेंस लाइन, तो ए का हाइट 5, ए का हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, अच्छा ओके ठीक है ना। यस सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए बी नीचे है, उसका दोनों का बीच का डिफरेंस हाँ 5 सेंटीमीटर है, डिफरेंस नीचे वाले को ले लो। अच्छा सर मैं ट्राई करता हूँ सर, फिर नहीं आया तो आपको पूछता हूँ। ओके ओके सर यस हाँ सर 29th प्रॉब्लम जो 20th पे बेस्ड है, उसका जो ए पार्ट है सर, उसमें भी कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगाएंगे क्या? ओके ए पार्ट में भी 29 कॉलम के भी ए पार्ट में ना, हाँ कंटिन्यूटी का इक्वेशन तो वैलिड होगा ही ना। AB is equal to कांस्टेंट। हाँ 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 ओके सर। सर आप 34th का सी और डी पार्ट करवा सकते हो क्या 34th का? एक मुझे पहले और किसी का डाउट था बीच में, अरीना व्हाट वाज योर डाउट? ठीक है, और किसका था डाउट था बीच में? सर हाँ तो सर फिर वो 28th के ए और बी का आंसर क्या सेम रहेगा क्या? 29th के जैसे ही रहेगा क्या? हाँ सेम देखो क्या दिया है, सेम है क्या? सेम दिया है क्या? सेम है सेम देखा नहीं आंसर चलेगा ठीक है। ओके सर चलेगा सर। ओके ओके हाँ नेक्स्ट कौन सा है भाई? हाँ वंश सर अच्छा वंश नहीं नहीं तुम्हारे पूछो, हाँ चलो बोल बोलो सर 34th का डी पार्ट करा सकते हो क्या? सर आप सी भी करवाओ ना, वही पूछ रहा था सी और डी। 34th कौन सा है? 34th एमसीयू सर एक चीज पूछनी थी सर, एक सेकंड मुझे मेरे नोट्स लिखने पड़ेंगे। इसमें दिया है वाटर लीक्स आउट सी एंड डी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट इन टाइम इंटरवल dt, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। अरे टाइम वाला तो वही वाला हो गया ना, a/√2h/g। नहीं हाफ द वाटर टू लीक आउट क्या? ये सर हाफ है, तो सर वैसे ही करेंगे, फुल के लिए कितना टाइम लगेगा और फिर जब हाँ हाफ पहुंचेगा तब उसमें dy/dt लिखेंगे क्या? अरे ये तो फुल मेरे को समझ गया सर, हाफ के बाद कैसे करेंगे? t1 - t2 करोगे ना, t1 is total time and t2 is time taken to reach half। ये ऐसा मान लो कितना, ये पूरा फुल है। यस सर। अब ये बताओ कि ये हो गया आधा h/2। यस सर। और ये खाली, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है। अच्छा दोनों एक कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा के आ जाएगा, तो वो यहाँ से ये आएगा। अरे हाँ करेक्ट। यहाँ से यहाँ का पता है वो a/a into h/g √h/g ऐसा आ गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अभी, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा ओके ओके बट अच्छा है। अच्छा ठीक है ना। अच्छा फिर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं फिर। बस हाँ सर सर ये सर वो dt सर dt dh वो क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आया सर। dt dx कहाँ है इसमें? ये तो डायरेक्टली आ गया ना। ये कौन सा वाला पार्ट है? ई पार्ट। सर मैंने सर सी पूछा था, तो सी पूछा है ना सर। सर अलग है, तो भी कंटिन्यूटी की इक्वेशन से ही आएगा तब का। हाँ सी पार्ट तो ई में वो डिक्रीज इन हाइट पार्ट नहीं आया। एक मिनट कौन सा सी वाला था? हाँ सर सी वाले में ही था सर, पर ये ई पार्ट किधर है सर? ये डी तक ही है ना? ये कौन सा पार्ट है ना सर? डी है शायद से जो भी आपने किया। हाँ डी पार्ट था। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पार्ट सी, ओ ये डी पार्ट था क्या? चलो ठीक है, तो अपन एक मिनट स्टार्ट में देखते हैं क्या है ये वाला ए पार्ट क्या क्या है। 34 स्टार्टिंग से देखते हैं ना। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल, ये निकाल लिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग द वाटर, हाफ द वाटर हैज लीक्ड आउट, ये भी निकाल लिया। अब तुम्हारा सी पार्ट बोल रहे। ओके सी पार्ट में जब हाइट h है, हाइट h होल से है ना, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लीक्ड आउट इन टाइम इंटरवल dt। तो अब यहाँ से जो पानी आएगा है ना, यहाँ से जो पानी आएगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम आउटफ्लो,
क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, स्मॉल ए इंटू, अगर इसकी वेलोसिटी को v2 बोलते हैं, v2, दिस इज d वॉल्यूम बाई dt, a इंटू v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2gh। तो हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम को निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, अरे यार वॉल्यूम निकालना है। सर रेट ऑफ वॉल्यूम से निकालना है ना? नहीं, वॉल्यूम निकालने को बोला है इन dt टाइम। नहीं तो तो रेट ही हो गया ना? नहीं, वॉल्यूम बाय टाइम रेट होगा ना। अच्छा ओके ओके। Thus decrease in height dh Correct, in correct. terms of h and dt. ओके, ये वॉल्यूम निकाला। अब इतना वॉल्यूम यहाँ चला गया तो यहाँ से पानी जो है कम होगा, ठीक है भाई। ये कितना कम हो जाएगा, कम हुआ इसलिए माइनस डाल दिया, कितना कम हो जाएगा, a इंटू डी एच, तो a इंटू √2gh इंटू डी टी। ओके, हाँ वही आएगा ना, अरे जो हमने किया था, हमने क्या किया, इसको a बाई ए डी एच बाई, फिर ऐसे निकाला था ना यार, ये √2g√h और dt, फिर इसको इंडिकेट कर लिया था ना हमने, याद है वंश? Yes. इसको अपने इंडिकेट कर लिया था ना फिर तो। अच्छा, फिर वही रिजल्ट आ जाएगा ना, a by a under root 2g और height of the मतलब initial height of liquid. हाँ ओके सर। उतना आगे करने की जरूरत नहीं थी ना, वो जो आपने रेक्टेंगल बनाया वही आंसर है ना? करेक्ट, हाँ। ओके सर, ओके। शिवांश, ये अंडरस्टूड ना शिवांश? सर यस, हाँ सर, आपने 15, 16, 17, 18, 19, 20 अभी तक होमवर्क नहीं दिया ना, तो बाद में दोगे क्या HCV का ही? ओके, वो होमवर्क नहीं दिया है क्या? हाँ नहीं, वो करना है। 22, 23, तो 8, 9, 10 वो सब दिया नहीं, तो करना है या नहीं करना है? मतलब नहीं, आप करना है। बोलोगे तब करना है या अपने आप चालू करना है? नहीं, अब चालू कर देना। अब पूरा होमवर्क ना, तो रिमेनिंग पूरा सब पूरा बुकलेट का रिमेनिंग, HCV का रिमेनिंग होमवर्क। करेक्ट करेक्ट, ओके सर, ओके। ना हाँ, यस गाइस, हाँ नेक्स्ट बताओ शिवांश। हेलो सर, सर आपको 34 का डी एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, डी पार्ट सर जो आपने ऊपर बनाया है इस 34 का विधान यस सर, बताओ। यस सर, कैसे किया था? 34 का डी, अच्छा अभी किया ना हमने, वो तो सर अरे वो देखना, स्टार्टिंग का टाइम पता है, टोटल टाइम कितना लगेगा जाने को, a by a into under root 2h upon d, तो किया था ना प्रूफ। हाँ हाँ। और फिर जब h by 2 बचा रहेगा तब भी सेम हम फॉर्मूला लगा देंगे, a by a into a into dy by dt should be equal to small a into under root 2g by, है ना, सेम फॉर्मूला। तो सर आप एक बेसिकली बार लिख बस, देना। हाँ सर वही करना है ना जो आप लेजर कर रहे हो, वही है ना? हाँ, यही वाला सेम आएगा। तो इतना खाली इनिशियली हमने वो लिमिट 0 to h डाला था, अभी सेकंड केस में लिमिट h by 2, 0 से h by 2 लेंगे। पर लिमिट्स का जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली अभी कर सकते हैं, क्लास में करवाया था वैसे ही कि हाँ, वो नहीं, केस अरे को नहीं लेके। देखो फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए बोल रहा था वैसे। नहीं फॉर्मूला पता है। ओके ओके, हाँ चलो, हाँ नेक्स्ट बताओ। सर वो 31st का आंसर सर मेरे को, मैंने किया था पहले सर, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने किधर तक किया, फिर मैं अटक गया था सर, वो मैं आपने बोला ना अभी वो 5 मीटर वाला। एक मिनट, 31st कराना है मुझे। हो नहीं सर, आपको पूरा नहीं करना है सर, वो मैं बीच में सर अटक गया था सर, तो मैं आपको उधर तक बता दूं क्या कैसे किया था, वैल्यूज सब उधर डाल के आपको बता देता हूँ। ओके, हाँ 31st में, यस शिवांश, क्या बोल रहे हो? सर वो 34 के सी में सर वो डिक्रीज इन हाइट वाला पार्ट क्या है सर? ओ, यहाँ पर जैसे जो है, अब क्या हुआ कि इसमें ना टाइम टी में भाई क्या हुआ, यहाँ से इतना पानी निकल गया भाई, ये वाला पानी, राइट? तो इतना पानी यहाँ से निकला, ये वाला पानी निकला, तो दिस लॉस ऑफ वाटर विल कॉज द लॉस इन दिस लेवल हियर dh। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस इन दिस लेवल एट दिस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू dh, है ना? ओके सर, और फिर हम लोग h निकाल लेंगे ना? करेक्ट, एरिया इनटू dh कर देंगे,
तो वही जितना पानी बाहर गया उसकी वजह से लेवल डिक्रीज हो गया ये वाला A into DH। तो इससे क्या बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं सर, तो हमारा मतलब आंसर क्या है इसमें, मैं वो नहीं समझ रहा। तो इसमें पूछा क्या है, वो जो बॉक्स किया है ना वो DH वाला फाइंड आंसर करना है। है। हाँ DH ही निकालना था। सर वो वेदांत ने बोला था वो ओके बॉक्स वाला आंसर है, सर। वही आएगा ना सर, डी वॉल्यूम जो आपने हाँ लिखा ये है। DH ही निकालना है। करेक्ट ना? नहीं सर, डी वॉल्यूम निकालना था सर शायद से। नहीं अरे डी हाँ वॉल्यूम, डी वॉल्यूम निकालना है। डी वॉल्यूम दोनों निकालना है। हाँ डी वॉल्यूम भी निकालना है और DH भी निकालना है। ठीक है पंच। हाँ हाँ सर समझ गए। ओके ओके। अब 31 क्या है तुम्हारा? सर वो मैं आपको बताता हूँ सर, वो ओरली तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सर इक्वेशन वो ऑफ सब कंटिन्यूटी। हो गया, पर आंसर बहुत नेगेटिव जैसे दिखा रहा था सर, इसलिए। वेदांत यस सर। क्या आंसर आ रहा है इसका भाई? सर वो मैंने सॉल्व किया था पहले सर, वो पहले वाले में तो सर वही लगाएंगे कंटिन्यूटी ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरे वाले में बर्नौलीज। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना है 0.5। यस सर। और स्पीड हाँ सर वो आंसर नेगेटिव ही आता है क्योंकि P का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो हमें PB माइनस PA फाइंड करना है। ओके ओके ओके। पर मेरे को 485 आ ही नहीं रहा था सर, मेरे को 1/50 माइनस 500 आ रहा था, इसलिए प्रॉब्लम था। ओके अरे वो जी की वैल्यू तूने क्या ली, जी की वैल्यू क्या ली? 10 हाँ 9.8 लेने का, HCV को 9.8 लेता है, पता नहीं क्यों। पर सर वो इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए, 9.8 और 10। चलो देखो ये तो ठीक है 10 आसपास सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा 350 आ गया आंसर, राइट राइट। हाँ भाई ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ का 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये समझ में आया? हाँ सर। चलो अब जो है इसमें बर्नौलीज लगाओ। सर मैं बताऊँ क्या बर्नौली का इक्वेशन, आपको डायरेक्ट बता दूँ? हाँ रो जी एच ए इज इक्वल टू PB प्लस, ठीक है, रो बाई 2 PB स्क्वायर प्लस रो जी HP। इसको रेफरेंस लाइन लेंगे। हाँ तो इसको रेफरेंस लाइन लेंगे तो ये गया हाँ वो भी जाएगा है ना। अब ये बताओ Yes, कि B का स्पीड, अभी आपको क्या निकालना है, प्रेशर का डिफरेंस निकालना है राइट। हाँ PA माइनस PB, मतलब मैंने ऐसे अज्यूम किया, वो निकालना। कोई सा भी, हाँ PA माइनस PB या PB माइनस PA जो भी निकालना वो एंड में जाके सर चेंज कर देंगे ना। है। PA माइनस PB कर प्लस रो जी एच, रो इज 1000, जी क्या लेना है 10 लेना है कि 9.8? 9.8। एच कितना है, ये वाला हाइट डिफरेंस कितना है 5 सेंटीमीटर ना। 5/100 इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों 5/100? अरे सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, 5/100 दूसरा बोल रहा हूँ। ये वाला। अब इधर क्या आ गया, हाँ अब ये जो है रो बाई 2 मतलब 1000/2, बी की वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये कितना आ गया 1/5, 20/100 का होल स्क्वायर ले लिया। हाँ भाई मतलब ये 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25, राइट। ये 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100। यस सर, ये हाँ राइट, ये आ रहा था। बस इससे निकालो आंसर। सर ये आ जाएगा क्या सर? मैंने आपका बस वो 9.8 और 10 का हम लोग का फर्क है, बाकी सेम ही किया सर, आ जाएगा क्या अभी? हाँ आंसर तो ठीक है ना? प्रथम ये ठीक है? आंसर 485 है। प्रथम सर आ रहा है। ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ सर। वो मेरा उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है ना सर, जी की वजह से। भाई इस तरह के अल्टीमेट भी किया होगा ना। नहीं यही सेम टू सेम किया था। अच्छा फिर ठीक है। हाँ सर G को 10 लेना है। जी को 10 लेना है। अरे तो फिर तो कभी HCV 9.8 लेता है, कभी 10 लेता है। सर आप ये कर दो ना सर, थोड़ा सीली है पर आप कर दो ना सर ये। RHS 15 आया हाँ और LHS 500, वो जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है वो। हाँ तो आ गया 485। अच्छा चलो ये आया 500 बोल रहे हो और ये आया फोटो मैच पे कर ले वेदांत का। सर एग्जाम में लेकिन 9.8 लेने का ना, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो।
हाँ हाँ, वो लोग नहीं देंगे ना, जी की वैल्यू देंगे, या फिर वैल्यूज क्लोज होंगी ना 10 लेके करना, जो आसपास जो होगा, ऐसे एकदम आसपास नहीं देखिए, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नहीं सर, वो सिंगल करेक्ट में तो वैसे हो जाएगा, लेकिन इंटीजर टाइप में। नहीं, उसमें जी की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे ना। अच्छा 9.8 ऐसे ऐसा नहीं, उधर वो तो रूल नहीं है। बोनस हो जाएगा ना, काफी सारे आंसर्स आएंगे। ओके ओके ओके। ये एसीपी सर ने हमें रेकमेंड किया है कि उनके मैकेनिक्स में वैसा करने का, तो फ्लूइड्स में कैसे करने का, मतलब दोनों एक ही बात हुई, लेकिन आपके जी की वैल्यू देंगे अच्छा ना। वो स्पेसिफाई कर देगा ना, तो चलेगा वो, बस टीडब्ल्यूडी में नहीं आता है वो, जेई में तो आ ही जाएगा ना। यस यस। ओ ये फिर नो प्रॉब्लम। सर वो जो 34 का सी था सर, जिसमें डीएच ढूंढना था सर, हाँ। वो आपने जो वैल्यू निकाला सर, वही डायरेक्टली लिख दो ना सर। बस हाँ, ये स्मॉल ए को नीचे उतारो। पर सर हमको माइनस आ रहा है ना सर, वो लोग को नहीं आ रहा था वो। माइनस का मतलब कम होना है ना। अच्छा हाँ, ठीक है। ओके सर, अभी सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। और कोई डाउट्स तो नहीं है इसमें? चलो मेरा भी लिखते हैं। हाँ करो सर, 1 मिनट सर, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो गाइस आज इतने ही करें, फिर हो गया ना पूरे डाउट्स? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके ओके। तो सर आप एक हफ्ते पहले आप जो जो जिसमें डाउट से आप रीडिंग सॉल्व कर लोगे वो? हाँ हाँ, अपने पास तो भी टाइम है। आज कितना 6 है ना, वी हैव 10-12 डेज। ओके सर, ओके धीरे-धीरे कर जाएंगे ना, करते जाएंगे, पूरा करते जाएंगे। सर। ये अगर सर मुझे एक ऐसे डाउट था कि अगर सपोज हमें वो 10th क्वेश्चन सर, पेज 42 बुकलेट के एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 10, हाँ सर उसमें वो ओमेगा की वैल्यू 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट दिया, तो उसको ऐसा ये ऐसा यूनिट नहीं हुआ ना, मुझे हर बार इसी में कंफ्यूजन होता है। रेडियंस में करना पड़ेगा। रेडियंस पर सेकंड में करो ना। ओके, ये लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है ना, रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेडियंस पर सेकंड है, सही। सर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर डिवाइड बाय 60। ठीक, ओके। यू वांट मी टू कन्वर्ट वाला वैल्यू, क्या है वैल्यू बताओ? Sir, a vertical cylinder contains water which is rotated about its axis with a speed of 120 revolutions per minute. एक रुक जाओ। 120 revolutions per minute. इसको ऐसे करो ना, ओमेगा इज एंगल बाय टाइम करो। 120 रेवोल्यूशंस मतलब 120 into 2 pi radians, and that happens in 1 minute, which is 60 seconds, right? अच्छा ओके। अरे हाँ, मैं हर बार में 4 पाया जाएगा ना। और हर बार मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर आंसर गलत आ जाता है। सर आपने करवाया था ना शायद क्लास में वो 4 पाई वाला। यस सर। चलो गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। यस सर, ओके और सर। कुछ तो नहीं है ना बचा? शिवांश हो गया? हाँ सर, डाउट्स सब हो गए सर। ये थैंक यू सर। ओके हाँ गाइस। और सर एक बोलना था सर, वो आप होमवर्क, आप सर वो होमवर्क वाइज ही दो ना, वो पूरा ऐसे एक साथ आप अभी दे रहे हो, तो आप होमवर्क वाइज दो ना। नहीं होमवर्क नहीं विधान, ये तो विधान पूरा हो गया ना अभी तो ऑलमोस्ट। जी सर, वंश हाँ। नहीं, मैं कह रहा था वंश 3 होमवर्क्स में हमने पूरा कवर कर लिया, अभी शायद बहुत कम बाकी होगा ना बुकलेट में। पर सर आप ऐसे होमवर्क वाइज ही दो ना सर, प्लीज। होमवर्क फॉर होमवर्क में ऐसे प्लीज। और एक होमवर्क कर दूंगा। ओके ठीक है। हाँ सर, प्लीज सर। सर ओके ठीक है भाई। हाँ सर अभी आप आपकी भी दूसरी क्लास है क्या अभी? हाँ। अच्छा ओके ओके। कितने बजे सर? अभी 5। हाँ अच्छा ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास पूछूंगा डाउट। ठीक है। हाँ थैंक यू सर। सर मुझे ना वो चंक ऑफ मॉलिक्यूल वाला जो है ना सर, वो और बायंसी वाला, मतलब चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके हम करते हैं सर, वो आपको कैसे स्ट्राइक होता है? कौन वो मुझे कंफ्यूज होता है सर, वो आप किधर वो एलिमेंट लेके करते हैं? हमेशा देखो, हमेशा मैं बाजू में एलिमेंट लेता हूँ, उसी पे ड्रॉ करके करता हूँ हमेशा, ऑल द टाइम्स। जैसा ऑब्जेक्ट है मतलब सर वो वही शेप का लेके हमेशा करता हूँ। सर आप चंक पे एलिमेंट लेते हो कि दोनों अलग अलग मेथड्स है ना सर, ये एलिमेंट वाला और चंक वाला? यस हाँ, नहीं एलिमेंट वाला अलग, मतलब चंक वाला मॉलिक्यूल्स वाला एक अलग है, और या इंडिविजुअल फेसेस पे फोर्स निकालना वाला अलग है। सर मुझे वो प्रोसीड करने को होता ही नहीं सर वो दोनों मेथड में सर, मतलब कोई सा भी एक ले लो, अदरवाइज मान लो फिर, या फिर वो वाला कर लो, फ्लूइड्स वाला। सर वो दोनों में ही नहीं होता है सर, मतलब सर वो ऐसे पता चलता है कि ये लगने वाला है, पर वो होता ही नहीं सर। अब तो आप नेक्स्ट क्लास बताओगे क्या प्लीज सर? ठीक है हाँ, वैसे भी हम डाउट क्लास में वैसे वो नहीं, मैंने जो सॉल्व किया ना फर्स्ट डाउट लेक्चर में, दोनों मेथड से सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को।
हाँ सर मैं आया था सर, पर मेरे को खुद से होता ही नहीं करने को सर। वो टाइम पे समझ गया था, वो जब भी आपने वो माता जी वाला बैंड बनाया था सर, 2πxd sin थीटा वाला, वही ना सर? हाँ सर तो उधर आया था सर, पर मेरे को खुद से करने को नहीं होता है सर, वो जो मतलब प्रोसीड करने को। ठीक है, अभी तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में डाउट में। हाँ ओके, डाउट क्लास में ना? ओके सर, क्लास में हाँ फिर अल्लाह करेंगे, डाउट में पूछना। डाउट में ना? ओके हाँ, सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन लेके आना लेकिन। हाँ सर लेके आऊंगा सर, कौन सा कोई भी लेके आओ क्या? हाँ कोई सही क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो गाइस, हाँ ओके गाइस, थैंक यू ऑल। हाँ बाय। हाँ बाय सर, थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स। हाँ